Hello dear students. So in this video we are going to start discussing with the chapter 5, a very important chapter from your 10th CBSE biology part, that is life process. So life process is one of the core and one of the important subject from your biology. So let's start discussing this chapter more in detail. So in this video we are going to cover the nutrition part from the life process. Basically this chapter is divided into 4 parts: nutrition, respiration, transportation and excretion. So we will be making 4 videos to cover the complete chapter called as life process, but in this video we are going to focus more on a concept called as nutrition. So let's start discussing this chapter more in detail. So basically, what is life process? It's very simple. There are some process taking place in the human body, and these process are very important. Just imagine one of these process, if they stop, then the survival of the human is not possible, right? So all the living organisms survive, or they can continue their life with some life process, and those life process are, the first and the very important life process is nutrition. Okay, so basically what is nutrition? Nutrition is consuming the food, having proper diet. When we have the proper diet, then only our body is going to get the rich amount of nutrients, and when our body is going to get the rich amount of nutrients, then only we can utilize those energy in multiple activities. Otherwise, if we don't have energy if we don't have the proper nutrients, then we can go through some diseases and our death may also occur. So nutrition is very important for the life process. Life process means to be if a living organism wants to be survive, then this life process is important. Okay, so after nutrition, then we have respiration. The second important life process is respiration. Basically, what is respiration? Not breathing. Breathing is different and respiration is different. Okay, so when we inhale, when we breathe, so we take the oxygen, and the oxygen goes to the lungs, and in the lungs there is alveolus. In alveolus there is exchange of gases, so the oxygen then goes inside the blood, and the carbon dioxide which is there in the deoxygenated blood, that is going to come back in your alveolus, and that will be exhaled out. So when you inhale the oxygen, and when you exhale out, you exhale the carbon dioxide. Okay, so that is respiration. So सांस तो चलना चाहिए ना यार. अगर आपका सांस चलेगा, inspiration expiration together is called as your respiration. So if this respiration goes on, if the respiration process goes on, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं. मीन्स we are talking about the humans or animals, right? So this respiration is very important in the animals or humans. Third important life process, transportation. So what is transportation? Transportation is nothing but transportation पूरा सिस्टम परफॉर्म करता है आर ह्यूमन हार्ट. सो हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन अपने हर एक बॉडी सेल्स तक जाना चाहिए, वो ऑक्सीजन अपने हर एक बॉडी पार्ट्स तक जाना चाहिए. तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सो अपने ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ब्लड का, और ब्लड को पंप करने का काम होता है अपने हार्ट का. सो दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एज योर कार्डियक सिस्टम, एंड दिस कार्डियक सिस्टम परफॉर्म्स द मेन फंक्शन कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. सो वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते, बट ब्लड के साथ साथ फ्री में कौन ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजन. सो जब ऑक्सीजन अपने बॉडी में रहेगा, तो ही अपने बॉडी के लेवल पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा. अगर अपने बॉडी के हर एक सेल के ऊपर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, तो वो सेल का डेथ हो सकता है. सो द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड इज गोइंग टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, एंड ब्लड को सर्कुलेट करते करते ब्लड साथ में किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा. बट ब्लड को सर्कुलेट करेगा कौन? ब्लड को पंप करना पड़ेगा. पंप कौन करेगा? अपना ह्यूमन हार्ट. Okay, so that is transportation. So in transportation we are going to discuss about the human heart more in detail, and the fourth is called as excretion. So what is excretion? Excretion basically when we give some input
ओके, व्हेन वी गिव सम इनपुट दैट हैज टू बी टेकन एज अ आउटपुट ऑल्सो। नहीं तो सिर्फ हम इनपुट दे रहे और कुछ आउटपुट नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी अपनी लाइफ प्रोसेस खत्म हो सकती है। व्हेन वी इनटेक एनी फूड मटेरियल, उस फूड के अंदर का न्यूट्रिएंट्स अपना बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद, अभी ये नहीं होता हम जो भी फूड कंज्यूम करते पूरा फूड ही न्यूट्रिएंट है, ऐसा नहीं होता। फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, लिपिड्स, मिनरल फाइबर्स, लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आर देयर। सो हम जब फूड कंज्यूम करते हैं, अपना बॉडी वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बचेगा दैट विल बी द वेस्ट। नाउ दैट वेस्ट हैज टू बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। इफ द वेस्ट इज नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड, देन द लाइफ प्रोसेस कैन स्टॉप। ओके, और भी कुछ लाइफ प्रोसेस है, बट आपके सिलेबस में 10th CBSE में ये 4 लाइफ प्रोसेस है, और अपना पूरा चैप्टर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। उसमें से हम इस वीडियो के अंदर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मोर इन कंप्लीट डिटेल अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, ये वीडियो में हम लोग पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, अभी क्या है, अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा लाइक चारों लाइफ प्रोसेस के ऊपर, तो इट विल बी वेरी लेंथी, 3 to 4 hours. सो आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लेंथी. सो इन दिस वीडियो न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वीडियो respiration, then transportation, then excretion. Okay, so let's start discussing the part of nutrition more in detail. चलो, सो अब हम लोग अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, सो पे अटेंशन एवरीबॉडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, योर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ओके. सो सी, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ भी एक लाइफ प्रोसेस है. ठीक है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, एंड ये लाइफ प्रोसेस होना जरूरी है. अभी इन सब में से अगर कोई एक लाइफ प्रोसेस अगर स्टॉप हो गया तो हम बचेंगे ही नहीं. ठीक है, सो हमें अगर अपने डे टू डे लाइफ में अपनी डेली एक्टिविटीज के साथ जिंदा रहना है तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस डेली बेसिस पे एवरी टाइम अपने बॉडी के अंदर होते रहना चाहिए. लाइक अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं हुआ तो खत्म. ठीक है, चलो. ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी अलाइव. ठीक है, सो हमें जिंदा रहने के लिए हेल्प कौन करेगा? ये लाइफ प्रोसेस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस वी आर एबल टू बी अलाइव. ठीक है, सो ये लाइफ प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग क्या है, वी आर एबल टू बी अलाइव. ओके, सो वी कैन बी अलाइव विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस. ठीक है, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस. सो ऐसे चीज से, ठीक है, लाइक हमें जिंदा रखने के लिए या अपने बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ये लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. ये लाइफ प्रोसेस नहीं रहेगा, खत्म. ठीक है, चलो. सो आई होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस. यहां पे तो उन्होंने दिया है ग्रोथ. सो ग्रोथ इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, राइट. डाइजेशन, व्हेन वी इनटेक द फूड, सो हम जब फूड को अपने माउथ में रखते हैं, सो माउथ से लेके जब अपना फूड इसोफेगस के थ्रू फिर स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर कुछ सिक्रेशंस होगा जैसे कि पेप्सिन, HCl, राइट. देन इट इज गोइंग टू गो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एनएस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा. ठीक है, सो पूरा मतलब हम फूड को खाने से लेके व्हेन वी इनटेक द फूड, इनपुट से लेके आउटपुट तक, उसके अंदर के बीच में जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ आएगा आपके डाइजेशन के अंदर. रेस्पिरेशन, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. सो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो हर एक बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सर्कुलेशन, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, पूरे ब्लड सर्कुलेट होगा. ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पे हमें मिल देगा, ऑक्सीजन, राइट. सो ऑक्सीजन भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा. एंड एक्सक्रीशन, इनपुट रहेगा, डाइट या फूड का इनपुट रहेगा तो उसका आउटपुट भी होना चाहिए, राइट. सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस which is important. So out of which we are going to start the first life process from this chapter, that is nutrition. ठीक है, सो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, so let's start discussing about nutrition more in detail. Okay,
So nutrition, basically what is nutrition? See, the whole process by which an organism obtain its food. So nutrition एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, मतलब फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड फिर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है और फिर वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। सो ये सब होने के लिए पहले न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, पहले न्यूट्रिशन तो चाहिए, हमें डाइट तो चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन दे, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, ठीक है। ऐसे कौन से प्रोसेस है, वो प्रोसेस से हमें फूड मिलेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आया? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो प्रोसेस से हमें फूड मिलेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, नाउ एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सा सजेशन रहेगा, सिर्फ लेक्चर को सुनना नहीं है, अपने पास अपना नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, डायग्राम्स भी आने वाले, कुछ फ्लो चार्ट्स आने वाले, ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट्स एंड ऑल। सो आपको ये ड्रॉ करके निकालना है, सिर्फ आप सुनते रहोगे तो फिर आपको अभी आपको समझ में आएगा, बट एक दो दिन बाद आप जब रिविजन के लिए बैठोगे पूरा ब्लैंक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट when we are discussing at that time, please note it down in your notebook. Okay, चलो, सो न्यूट्रिशन समझ में आया सबको? बेसिकली न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है और न्यूट्रिशन एनिमल्स में भी होता है। ओके, सो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ओके, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स बेसिकली होते हैं ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर बेसिकली ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपने 8th में 9th में पढ़ा ही रहेगा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। वो खुद का फूड नहीं बनाएंगे, उनका बॉडी खुद के लिए फूड नहीं बनाएगा, वो दूसरे का फूड, मतलब दूसरे के ऊपर वो फीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स क्या किसी को जाके खाते हैं क्या? नहीं, वो अपना खुद का फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो दिस। प्लांट्स का ये सीन है। एनिमल्स, क्या एनिमल्स में भी ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं, एनिमल्स क्या करते हैं? वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। देखो, मेहनत किया प्लांट ने, एनर्जी लाया प्लांट ने, और हमने उसको कंज्यूम किया और उनके अंदर का एनर्जी हमने ले लिया, ठीक है। सो ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स? डिपेंडेंट और डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। हाँ, हेट्रोट्रॉप्स बेसिकली ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम अपना बॉडी कभी खुद से फूड नहीं बनाएगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है। अपने बॉडी के सेल्स के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं फूड बनाने की, ठीक है। ओके, सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। सो बेसिकली न्यूट्रिशन, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ओके, चलो, विल मूव अहेड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अभी आगे क्या है अपने पास? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 मोड्स है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड एंड द सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक मोड। नाम से आपको एक आइडिया लग गया रहेगा, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये होते हैं प्लांट्स के लिए, एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये होते हैं एनिमल्स के लिए, राइट। सी, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इन दिस न्यूट्रिशन और इन ऑटोट्रॉपिक, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन in which inorganic matter like carbon dioxide and water etc. are utilized to prepare the organic food by the process of photosynthesis। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली होने क्या वाला है? हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेने वाले हैं, जैसे कि यो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, उसके बाद हम लोग वाटर को लेंगे। सो ये मटेरियल्स को यूज करके किसके प्रेजेंस में यूज करेंगे हम लोग? ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को हम लोग यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इसको यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हम लोग बनाने वाले हैं ग्लूकोज विच इज द फूड फॉर प्लांट, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसे होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को लिया जाता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, that is glucose, and this process is called as photosynthesis, right? So this was the case for autotrophs. But what about heterotrophs? Heterotrophs में क्या होता है? It is a kind of nutrition in which organism do not possesses the ability to synthesize their own food. उनके बॉडी के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि खुद का फूड बनाए, दूसरे का चाहिए, ठीक है। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। सो हेटेरोट्रॉप किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जैसे कि हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
सो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग उन पे ही डिपेंडेंट है, अपना बॉडी के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं फूड बनाने का, जैसे कि एनिमल्स हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है। चलो, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। सो लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सी, autotrophic nutrition, the organisms which carry out autotrophic nutrition are called as autotrophs. Basically autotrophs क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को अडेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, राइट। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, राइट, ग्रीन प्लांट्स। और ऑटोट्रॉप्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स मतलब कोई भी प्लांट हो, दे यूज व्हाट? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ऐसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं जो उनको इजीली मिल जाता है नेचर से या सराउंडिंग से, और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हमें मिल जाता है ग्लूकोज, ठीक है। सो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। हमें फिर ये मिलता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज प्लांट्स के लिए एक एनर्जी मॉलिक्यूल है और वो अपने लिए भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो हम एनर्जी मॉलिक्यूल, हम ऐसे कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल अपनी बॉडी के अंदर खुद बना सकते हैं क्या? नहीं। हम जब न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल अपने अंदर भी आ जाएगा, प्लांट्स का एनर्जी अपने अंदर भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। ओके, सो दिस इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप सो आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे नोट्स में जैसा है वैसा सेम टू सेम आपके नोटबुक में भी सब कुछ होना चाहिए। Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in carbon dioxide and H2O and convert these carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called as photosynthesis। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं photosynthesis। डिफाइन photosynthesis करके आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। चलो, एंड व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अभी इसका भी केमिकल इक्वेशन है भाई, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। चलो, सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in presence of sunlight inside the chlorophyll, then that gives formation of glucose plus 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water as a byproduct. So यहाँ पे byproduct हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। इसके लिए बोलते हैं प्लांट्स टेक, मतलब प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? वो मतलब उनके रेस्पिरेशन में इनपुट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और आउटपुट होता है ऑक्सीजन। अपने केस में, ह्यूमंस के केस में एकदम उल्टा है। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ठीक है। सो इट इज कंप्लीट डिफरेंट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। सो इसके लिए बोलते हैं ना प्लांट मोर ट्रीज। जहां पे भी जाओ ट्रीज प्लांट करना चाहिए, बोलते हैं ना सब लोग, राइट। सो ट्रीज प्लांट करने से आपको ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, बिकॉज प्लांट के लेवल पे तो फोटोसिंथेसिस होगा, एंड जब फोटोसिंथेसिस होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन रहेगा तो ही तुम जिंदा रहोगे ना। अगर हम अपने आसपास समझो देयर इज नो प्लांट्स, तो ऑक्सीजन भी वहां पे, उसका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहेगा। सो अगर ज्यादा प्लांट्स रहे, ज्यादा ट्रीज रहेंगे, तो अपने पास ऑक्सीजन भी अपने को जितना, अपने बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें मिलते रहेगा। बट अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा। सो प्लांट ट्रीज, ओके। चलो, सो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ऐसे कौन से मटेरियल्स का यूज होता है? सी, सनलाइट। सबसे पहले किसका यूज होता है? सनलाइट के बिना तो काम नहीं होगा, वही तो एनर्जी है। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एक अपना ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, मतलब दैट इज एग्जैक्टली द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड भी लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपने सराउंडिंग में रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। ऑलरेडी इन योर 9th स्टैंडर्ड यू माइट हैव स्टडीड दिस इन टिश्यूज चैप्टर। प्लांट्स के ऊपर होते हैं, प्लांट्स को जब आप जूम करके देखोगे तो आपको मिलेगा प्लांट सेल के अंदर आपको मतलब स्टोमेटा, ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप। सो जब स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं तो वहीं पे होता है अपना उसके अंदर होता है अपना क्लोरोफिल, एंड वहीं पे होता है अपना फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वाटर भी लगेगा। वाटर नाउ प्लांट्स को पानी क्यों डालते हैं? बिकॉज रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब होगा और पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी अपने 9th में पढ़ा रहेगा, राइट। वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये अपने सॉइल में रहेगा, ठीक है। अपने सॉइल के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस
एक्सेट्रा आर देयर एंड दे आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, सो रूट्स क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को भेजेगा, प्लांट्स की लीव्स को भेजेगा। सो ये जब प्लांट्स की लीफ पे जाएगा तो वहाँ पे सराउंडिंग के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब सनलाइट आके गिरेगा फोटोसिंथेसिस शुरू। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट के लेवल पे होता है फोटोसिंथेसिस। अगर आप कोई झाड़ देखोगे, अगर इफ़ यू टेक एनी ट्री, ठीक है, अब ये ट्री में से हम एक लीफ निकालते हैं। ठीक है, अब मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ समथिंग। समझो ये ग्रीन कलर है क्या अपने पास, ग्रीन कलर, अरे ग्रीन कलर का ऑप्शन है। ठीक है, सो अगर हमने ये लीफ निकाला, ठीक है, और लीफ का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, मतलब उसको अगर मैंने समझो ऐसे कट किया, लीफ का मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया, और ये क्रॉस सेक्शन को अगर मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो जब व्हेन आई एम गोइंग टू टेक द क्रॉस सेक्शन आई एम गोइंग टू गेट समथिंग कॉल्ड एज क्यूटाइल। सो जब मैं क्रॉस सेक्शन लूँगा ना, तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर ना मुझे एक ऐसे एक थिन लेयर मिलेगा जिसको हम क्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, सो क्यूटाइल के अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसे छोटे छोटे सेल्स टाइप मिलेंगे। सो ऐसे छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, और छोटे छोटे सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, एपिडर्मिस। और आप थोड़ा माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे प्लांट सेल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ऐसे प्लांट सेल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, यू कैन गेट सम प्लांट सेल लाइक दिस, एंड इस प्लांट सेल को भी आप अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पे प्लांट सेल को भी जब आप जूम करके देखोगे, तो अभी ग्रीन कलर तो नहीं है बट मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ। प्लांट सेल को भी जब जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स मिलेगा। ठीक है, अपने पास ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है, सो आपको मिलेगा ग्रीन पिगमेंट्स, ऐसे ग्रीन पिगमेंट्स मिलेगा। सो दिस ग्रीन पिगमेंट्स एग्जैक्टली यही साइट होता है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे अपना एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बातें चल रही है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है एक्चुअली, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये सब आपका 9th का बेसिक्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेसिकली क्लोरोफिल। सी, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और वहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस होता है। दैट इज अ ग्रीन पिगमेंट। ऐसे बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स होने की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, चलो, मेन इवेंट इन फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो ये एक मेन इवेंट होता है अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो लाइट इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड देन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। चलो, सो आगे भी अपन डिस्कस कर लेंगे। और क्या इवेंट्स होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, फोटोसिंथेसिस जब होगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड देयर इज स्प्लिटिंग मींस ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होता है, H2O जो था, H2O को हम तोड़ के क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग मतलब स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ केमिकल रिएक्शन, वाटर को हमने ब्रेक किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एंड वहीं से हमें फिर ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टोमेटा। बेसिकली व्हाट इज स्टोमेटा? सो आई होप सो यू कैन सी दिस इमेज हियर. So stomata, we can say it as a tiny pores present on the surface of the leaves. सो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग करने में हेल्प करता है. सो जब वो ओपन होता है तो वहीं से अपने सनलाइट अपने लीफ के अंदर जाएगा. एंड ये क्लोजिंग भी मतलब इट इज़ ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट विल बी मोस्टली क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम. राइट, जो भी अपना गैसेस इवेपोरेट होता है जैसे कि ऑक्सीजन बोलो तो दैट इज रिलीज आउट ऑफ द स्टोमेटा. फंक्शंस, what are the functions of like photosynthesis or stomata? Stomata के functions क्या क्या है अपने पास? Let's discuss that also. Exchange of gases O2 and CO2. स्टोमेटा का फायदा क्या है? यह स्टोमेटा, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये गार्ड सेल, ठीक है, और ये बीच में आपको दिख रहा है दिस इज अ स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर. ये स्टोमेटल पोर, ये ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग होता है, ठीक है, स्टोमेटल पोर, और ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है. एंड दिस आर द मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट साइट वेयर योर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. सो यहाँ पे क्या रहेगा? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. सो यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज मतलब यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है. लॉस लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन करके एक प्रोसेस होता है. सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? वाटर अपना जो भी वाटर वेपर्स है वो यहाँ से इवेपोरेट होता है, ठीक है. सो दिस इज स्टोमेटा. ओके, नाउ
आफ्टर डिस्कसिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, द सोर्स ऑफ फूड इज नथिंग बट योर न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now after completing the autotrophic nutrition, we are going to start with the heterotrophic nutrition. Heterotrophic, what is heterotrophic? When the nutrition takes place in the heterotrophs are called as heterotrophic nutrition. जैसे कि जब न्यूट्रिशन अपने अंदर होता है तो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, न्यूट्रिशन जब कोई एनिमल के अंदर होता है तो वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, प्लांट्स आए तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर देयर, दैट इज होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। व्हाट इज होलोजोइक? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम कौन से कैटेगरी, ह्यूमंस कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे, होलोजोइक। हम क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड खाते हैं ना, फूड खाने के बाद हम उसको च्यू करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड फिर उसको अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एक्सक्रीट भी करेंगे। ऐसे जो भी एनिमल करेगा उसको हम बोलते हैं होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो वी पीपल, वी ह्यूमंस आर फॉलोइंग होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक बार, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी is called as holozoic nutrition. Example, amoeba हो गया, animals हो गया, humans हो गया. So these all are the holozoic heterotrophic nutrition. चलो, now we come to the saprophytic. What is saprophytic nutrition? Organisms feed on dead decaying matter. ऐसे organisms जो दूसरे के dead body के ऊपर अपना फूड को प्रिजर्व करते हैं। मतलब कोई अगर ऑर्गेनिज्म मर गया है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है तो वो मरा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके लिए फूड बन जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल फंगाई, ठीक है, फंगाई हो गया, फंगाई इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो मरने के बाद जो बचेगा रिमेन्स, दैट इज द फूड फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट फंगाई। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स मतलब होस्ट के बाहर वो रहेंगे एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हम लोग, वी आर द होस्ट। और फिर ऑर्गेनिज्म कौन है? पैरासाइट कौन है? मस्कीटो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, मस्कीटो, ठीक है। मस्कीटो एक ऑर्गेनिज्म है, मस्कीटो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब मस्कीटो क्या करेगा? अपना खून चूसेगा, ठीक है, बट मस्कीटो के लिए हम बन गए होस्ट। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर भी रह के ये काम कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के बाहर भी रह के काम कर सकते हैं, बट खून तो मेरा ही जाने वाला है, खून तो अपना ही जाने वाला है ह्यूमंस का। तो पैरासाइट्स बेसिकली, वो पैरासाइट्स के लिए हम बन गए होस्ट। सो वी आर द होस्ट फॉर द पैरासाइट्स। मच्छर आया, काटा, उसका न्यूट्रिशन मिल गया ना, मेरा खून तो उसके लिए न्यूट्रिशन था, वो मेरे अंदर है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे कि अगर अपने बॉडी के अंदर की बात करें तो अपन टेप वर्म बोल सकते हैं, टेप वर्म। सो टेप वर्म एक ऐसा वर्म होता है जो अपने इंटेस्टाइन्स में होता है, मोस्टली अपने बॉडी के अंदर रह के अपना ही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है और वो भी जिंदा रहता है, ठीक है। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के अंदर ही रहता है, टेप वर्म। मस्कीटो अपने बॉडी के अंदर नहीं रहता बट अपने बॉडी के बाहर रहता है, बट उनके लिए हम क्या है? होस्ट। सी, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, होस्ट अपन, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, अपने से न्यूट्रिशन लेके भी जाएंगे, अपना खून उनके लिए न्यूट्रिशन रहेगा। प्लांट्स के अंदर भी होता है, जैसे कि कस्केटा प्लांट पैरासाइट, कस्केटा करके एक प्लांट पैरासाइट होता है, प्लांट का एक पैरासाइट होता है जो प्लांट के अंदर ही होता है और प्लांट्स के न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। एनिमल्स में लाइक अपने अंदर मस्कीटो बोल सकते हैं, टेपवर्म बोल सकते हैं, टिक्स लीच बोल सकते हैं। टिक्स लीच भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रह के जिंदा रहता है, ठीक है। सो दीज आर द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। सो इसका एक अच्छा चार्ट बनना चाहिए, एक अच्छे से चार्ट में आपको लिख के लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, वी मूव फर्दर। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। अभी कोई ऑर्गेनिजम्स अपना फूड को ऑब्टेन कैसे करेगा? बेसिकली ऑर्गेनिजम्स बोलने के बाद 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आता है। अगर किसी ने मेरा बेसिक का वीडियो नहीं देखा रहेगा ना बायोलॉजी का, तो एक बार बेसिक का वीडियो देख लेना, मैंने ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर डिटेल में कवर किया है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स
दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं मैं। ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर एंड द सेकेंड इज मल्टी सेल्युलर। सो व्हाट इज यूनिसेल्युलर, व्हाट इज मल्टी सेल्युलर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। यूनिसेल्युलर मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर मतलब सेल, ठीक है। सो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल का बना होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। है ना आपके पास एग्जांपल, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे इधर ही एग्जांपल देखो, इधर ही है इसके एग्जांपल्स। जैसे कि आपके पास हो गया एमीबा, उसके बाद पैरामेशियम। सो एमीबा आपने सुना रहेगा एमीबा के बारे में, जिसके पास सूडोपोडस होता है, सूडोपोडियम, ठीक है, उसके थ्रू वो मूवमेंट करता है। पैरामेशियम, राइट। सो आगे अपन डिस्कस करने वाले इनके बारे में भी। सो ये ऐसे लिविंग और अच्छा, इसको देख सकते क्या अपन, किधर है एमीबा, किधर है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखेगा रे। एमीबा, पैरामेशियम, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ठीक है। सो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। सो एमीबा, पैरामेशियम आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स रहेगा, मल्टीपल। सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल्स से बनते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर। अरे जैसे कि एनिमल्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है। सो ह्यूमंस हो गए। सो अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या एक ही सेल नहीं होता भाई, अपने बॉडी के अंदर देर आर एन नंबर ऑफ अनकाउंटेबल बिलियंस ऑफ सेल्स। सो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है एक टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज साथ में आके एक बनाते हैं एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स साथ में आके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में आके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म या एक पर्सन को या एक ह्यूमन को, ठीक है। सो बेसिकली अपने बॉडी के अंदर बहुत सेल्स है। सो वी कम अंडर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हम लोग किसके अंदर आते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम आते हैं। सो आई होप सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलो, सो यूनिसेल्युलर में कौन कौन आता है? एमीबा एंड पैरामेशियम। सो अब इसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एमीबा एंड पैरामेशियम के ऊपर। सो हाउ एमीबा कंज्यूम्स द न्यूट्रिशन। अपना टॉपिक क्या चल रहा है फ्रेंड्स? अरे अपना टॉपिक क्या चल रहा है? अपना टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन। सो अपन अभी देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्या देख रहे हैं? न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेल्युलर में कौन आ गया? एमीबा। एमीबा माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद आपको ऐसे दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे दिखेगा। ज्यादा टेंशन मत लो, किधर है एमीबा करके ढूंढो मत, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, ठीक है। सो एमीबा क्या करेगा? एमीबा के पास होता है सूडोपोडिया। क्या होता है एमीबा के पास? ये सूडोपोडिया, उसकी ये जो ये दिख रहा है क्या आपको? सूडोपोडिया। सो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सो इस सूडोपोडिया से वो मूवमेंट्स कर सकता है, वो सूडोपोडिया से वो मूवमेंट्स कर सकता है और आगे जा सकता है, मतलब ये सूडोपोडिया से मूव होगा और एमीबा आगे जाते रहेगा, ठीक है। सो एमीबा के पास होगा सूडोपोडिया। सो सूडोपोडिया से वो मूवमेंट्स करेगा एंड वो क्या करेगा? जब फूड आएगा तो फूड को कैप्चर करेगा। किससे कैप्चर करेगा? उसके पास क्या हाथ पैर होते हैं क्या? अरे नहीं रे बाबा, उसके पास होता है सूडोपोडिया। सो इस सूडोपोडिया से वो क्या करेगा? समझो फूड पार्टिकल है, यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम भी है, ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। सो ये देख लो, ये होता है आपका फूड पार्टिकल, समझो, ठीक है। फूड पार्टिकल ये हो गया आपका फूड पार्टिकल। तो ये एमीबा क्या करेगा? उसको सूडोपोडिया से ये फूड पार्टिकल कैसे कवर कर लेगा, धीरे 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 ऐसे कवर कर लेगा, ठीक है। सो यू कैन सी योर फूड पार्टिकल, इधर आ गया, दिस इज द फूड पार्टिकल एंड ये है उसका सूडोपोडिया, ठीक है। सो सूडोपोडिया से उसने अपने फूड पार्टिकल को कवर कर लिया है, ठीक है। उसने उसको पकड़ लिया है, फूड को पकड़ लिया है, फूड को क्या कर लिया? उसने कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद टेकन इन, उसको अपने बॉडी के अंदर लेगा और उसके पास होता है फूड वैक्यूल। एमीबा के सेल्स के पास होता है फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्ट इन द सेंस उसके वो फूड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को लेना स्टार्ट करेंगे और जो भी वेस्ट बचेगा उसको वो डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो भी, मतलब ये यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड जो भी फूड का वेस्ट रहेगा या अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। सो एमीबा के क्या करेगा? समझो ये फूड है, इसमें से समझो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम हो गए, तो
तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा उसको वो थ्रो करके आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे अपन करते, हम फूड कंज्यूम करते, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, हम उसको एक्सक्रीट कर देते, ठीक है, वैसे अमीबा भी करता है, ठीक है। बट ये एक ही सेल है, ठीक है, ये पूरा एक ही सेल है। जैसे इसके लिए हम इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन सेल, ठीक है। आई होप सो द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे चार्ट में भी आपको एकदम डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करवा के दिया है, ठीक है। न्यूक्लियस, हाँ, उसके पास न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल है, सूडोपोडिया का मूव करके फूड को ग्रैब करेगा, फूड को कैप्चर करेगा, फूड अंदर चला गया। जैसे ही फूड अंदर चला गया तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होने के बाद उसके फूड के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो भी वेस्ट बचेगा उसको थ्रो किया जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। सो ऐसे होता है अमीबा में न्यूट्रिशन, ठीक है। सो ये प्रॉपर चार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। सो सब लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, और ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। Okay, after amoeba we have another another unicellular living organism, that is paramecium. पैरामेशियम बेसिकली, पैरामेशियम का इमेज तो ऐड नहीं किया मैंने, बट पैरामेशियम दिखने में ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। पैरामेशियम थोड़ा ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसे इसको हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब इसको हम पैरामेशियम बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सीलिया होता है। अभी जैसे एमीबा के पास सूडोपोडिया था, वैसे आपके पैरामेशियम के पास होगा सीलिया। सो ये है उसके सीलियास। अभी अगर कोई फूड पार्टिकल है तो ये सीलिया से उसको कैप्चर करेगा, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट को वहाँ पे एक्सक्रीट कर देगा, मतलब वहाँ पे छोड़ देगा और आगे चला जाएगा। सो ये भी अपना ऑलमोस्ट एमीबा जैसे ही काम करेगा, ठीक है, पैरामेशियम। बट इसके पास सूडोपोडिया नहीं रहेगा, इसके पास रहेगा सीलिया। सीलिया मतलब ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज सीलिया, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ये उनका बॉडी है, तो पूरा बॉडी पे से काटे 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 जैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। टेक इन फूड, सो ये सीलिया के थ्रू, ये सीलिया के थ्रू ऐसे फूड को अंदर लेते हैं एट स्पेसिफिक स्पॉट। स्पेसिफिक स्पॉट पे लेने के बाद आपको पता ही आगे क्या होगा। एक बार फूड को ले लिया तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी वेस्ट बचा उसको वहाँ पे छोड़ देंगे, और फूड उनको मतलब उनको न्यूट्रिशन तो मिल गया, उनका बॉडी डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिल गया, और आगे चले जाएगी, ठीक है। सो लाइक दिस हैपेंस इन पैरामेशियम। सो एवरीबडी ऑल्सो राइट अबाउट द पैरामेशियम। पैरामेशियम के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो ये चार्ट अच्छे से ड्रॉ करके लेना है। चलो, अभी यूनिसेल्युलर की तो बात हो गई, यूनिसेल्युलर की तो बात हो गई। अपने पे आते ह्यूमंस, एनिमल्स, अपन लोगों पे आते हैं, ठीक है। तो वी ह्यूमंस आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। सो हम क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। सो हम लोग आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। सो अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, सो दिस न्यूट्रिशन इज फॉर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये है, ठीक है। सो अपने अंदर बेसिकली कैसे होता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो अपने अंदर क्या होता है, ये स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले इंजेशन, हम फूड को पहले कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने माउथ के थ्रू फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, जब हम फूड को इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। फूड को फिर क्या करते हैं, चबाते हैं ना, चबाते उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे डायरेक्टली तो स्वॉलो नहीं कर सकते, ईसोफेगस में या आपके स्टमक के अंदर फंस जाएगा वो, ठीक है। तो हमें उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी अमाइलेज को यूज करके ब्रेक करना, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। फिर वो अपने बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद स्टमक के थ्रू वो थोड़ा एसिडिक भी होगा, और एसिडिक होने के बाद स्टमक के थ्रू जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन, मतलब मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड बेसिकली दिस हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, हाँ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसके अंदर से क्या क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा, उसके बाद डाइटरी फाइबर्स मिलेगा, ठीक है। सो ये सब न्यूट्रिएंट्स को क्या हुआ, उसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब अपना बॉडी उसको यूज करके लेगा, एंड लास्ट में एक बार पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल गया, वो फूड इज ऑफ नो यूज, मतलब जो भी बचा रहेगा तो वो तो वेस्ट है ना, तो उसको हमें एक्सक्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम एक्सक्रीशन प्रोसेस को इगेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन या इगेशन। सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट। सो अपने
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या अपने ह्यूमंस के अंदर ये प्रोसेस में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। चलो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। अभी सबके अंदर न्यूट्रिशन अलग अलग वे में होता है। ये भी डिपेंड करेगा कि आपके फूड के अंदर कितना कार्बन है, ठीक है, आपके फूड के अंदर कितना कार्बन है वो भी डिपेंड करेगा, और उसके बेसिस पे आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस रहेगा, उसके ऊपर आपका डाइजेशन रहेगा, और एक मतलब आगे का सब आपके कार्बन के कंटेंट के ऊपर रहेगा। आगे अपन वो सब डिस्कस करने ही वाले, ठीक है। चलो, सो नाउ वी कम इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो अपनी बात करते हैं अभी ह्यूमन बींग्स। चलो, ह्यूमन बींग्स में इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया है। ये पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन से आप इसको लाइक ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1, वी इनटेक द फूड। सो हम जब फूड को इनटेक करते हैं तो वी इनटेक इट बाय द माउथ, ठीक है, हम उसको माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं। सो इनटेक ऑफ होल फूड, क्या करते हैं हम लोग, इनटेक ऑफ होल फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ होल फूड। आफ्टर दैट टीथ से क्या करते हैं हम, उसको च्यू करते हैं या ग्राइंड करते हैं। सी, हम टीथ से क्या करते हैं, उसको च्यू करते हैं या उसको ग्राइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद टंग इज यूज फॉर रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड। सो टंग से क्या करते हैं, हमने जो भी फूड को च्यू किया है, हमने जो भी फूड को ग्राइंड किया है, ओके, हमने जो भी फूड को, आई वॉज जस्ट चेकिंग, कैमरा का थोड़ा चेक करना पड़ता है बिकॉज कैमरा के उस पर कोई नहीं है बहुत डर लगता है रिकॉर्ड करते करते, लाइक अपन इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो खत्म। बहुत बार हुआ ऐसे मेरे साथ, तो बीच बीच में जाके देखना पड़ता है एक्चुअली। आप बोलते रहे अरे ये बात करते करते उधर किधर गायब हो रहे, तो बेसिकली आई गो दैट साइड एंड आई लुक इन द कैमरा वेदर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। ओके, चलो। सो माउथ से फूड को इनटेक करेंगे, टीथ से उसको च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे, टंग से फूड को रोल करेंगे, टेस्ट करेंगे, बिकॉज अपने टंग के ऊपर होते हैं कुछ टेस्ट बड्स। ये टेस्ट बड्स वो टेस्ट को सेंस करके अपने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। स्वॉलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, सो ये सब कौन करेगा, टंग करेगा, मतलब टेस्ट बड से टेस्ट भी देगा और अपने फूड को आगे ढकलने का काम कौन करेगा, टंग करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास माउथ के अंदर यहाँ पे ही अपने पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी सलाइवरी ग्लैंड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, अब हम थोड़ी देर में इसको आगे डिस्कस करने वाले। बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऐसे 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स अपने यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। अभी सलाइवा बेसिकली क्या होता है, हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं ना, ये फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक लिक्विड लगेगा, उसको हम सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। सो वो अपने माउथ के अंदर जो वाटरनेस है उसको ही सलाइवा बोलते हैं अपन। सो ये उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम को हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अपना जो सलाइवा होता है ना, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है ना, वो फूड पार्टिकल्स को और ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। मतलब फूड पार्टिकल्स जब ग्राइंड होगा, फूड पार्टिकल्स जब कोर्स होगा, पाउडर जैसे होगा या थोड़ा छोटा होगा, तो अपना डाइजेशन भी इजी रहेगा। अगर समझो सलाइवा नहीं रहा तो अपना फूड जो रहेगा ना वो कोर्स रहेगा, मतलब एकदम हार्ड रहेगा और इजीली वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हमें सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप जब कुछ खाते हो ऑटोमेटिकली आपके ग्लैंड्स को समझ में आ जाता है और आपके ग्लैंड्स सलाइवा को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हाँ, सो सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। म्यूकस का मतलब होता है स्टिकीनेस, ठीक है। वो स्टिकीनेस और सलाइवा होने की वजह से वो फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो स्टार्च है ना, जो भी स्टार्च रहेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा आपका सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है सलाइवरी अमाइलेज, मतलब आपका सलाइवा, ठीक है। सो ये हो गया आपके माउथ के अंदर, समझा। माउथ के अंदर क्या हो रहा है, फूड लिया, च्यू किया टीथ से, टंग टेस्ट देगा, फूड को रोल करेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करके सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। सो ये हो गया अपने माउथ का। सो माउथ में ये सब चीज़ें होता है। सो आप इसको अच्छे से एक चार्ट बना दो, ठीक है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड, इसोफेगस क्या है, अभी माउथ में फूड है, अभी फूड का पे माउथ पे है, बट उसको लेके जाना है स्टमक में। सो माउथ से स्टमक तक कैसे जाएगा फूड, तो वहाँ पे एक ना पाइप होता है या एक ट्यूब टाइप होता है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। सो इसोफेगस क्या करेगा, वो जो फूड था जिसको हमने ब्रेक डाउन किया था सलाइवरी अमाइलेज को यूज करके, वो फूड अभी जाएगा स्टमक के अंदर बाय द हेल्प ऑफ इसोफेगस। अभी इसोफेगस ऐसे ढकलेगा नहीं, वहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट,
ठीक है, एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो हम जब फूड को स्वॉलो करते हैं ना तो वहाँ पे ना ऐसे डायरेक्टली फूड नहीं जाता, धीरे 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 फूड जाता है, ठीक है। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वहाँ के मसल्स क्या करते हैं, फूड को धीरे 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 ऐसे रोल करके लेके जाते हैं, ठीक है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। सी, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे होते रहते हैं। हम जब फूड को स्वॉलो करते हैं, हम फूड को जब अंदर लेते हैं तो अपने एसोफेगस के मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने की वजह से वहाँ पे मूवमेंट होता है, और वहाँ पे बीच में जो फूड था वो धीरे 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 आगे चला जाता है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होता है। मतलब आपके जो भी एमल्सिफिकेशन का जो भी फैट ग्लोब्यूल्स रहेगा, फैट ग्लोब्यूल्स को आगे ढकलने के लिए भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगता है। आगे भी अब ये आएगा, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखना। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। सो कोई मसल अगर जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना तो उसके बीच में जो भी रहेगा ना वहाँ पे एक मूवमेंट रहेगा और वहाँ के सब्सटेंस को आगे ढकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसका स्टमक, अभी फूड कहाँ पे चला गया, स्टमक। अभी स्टमक के अंदर क्या होता है ना, अपने कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस। अभी गैस्ट्रिक जूस कुछ सिक्रीट होता है अपने स्टमक के अंदर। बेसिकली 3 गैस्ट्रिक जूस अपने स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है। जब फूड जाएगा ना, फूड के साथ साथ ये गैस्ट्रिक जूसेस भी जाके मिल जाएंगे। सबसे पहले पेप्सिन, सेकंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस। आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा वो HCl, ये HCl ऑलमोस्ट इनके केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट ये वो केमिकल नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे कि HCl ये पेट से निकलता है, अरे नहीं, यहाँ पे अपना बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, ठीक है। बट ये अपने फूड को क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं। हाँ, enzymes are the small biological catalyst which makes the chemical reaction fast in our human body। ऑलरेडी बेसिक के लेक्चर में सबको बताया, राइट। सो एंजाइम्स क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर ऐसे भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने में हेल्प करेंगे। अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने का काम किसका रहेगा, एंजाइम्स का। तो पेप्सिन के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स रहेंगे जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा और अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। सो प्रोटीन का ब्रेक होकर अमाइनो एसिड कन्वर्जन कौन करवाएगा, पेप्सिन। HCl क्या करवाएगा, हम जो फूड खाते हैं ना, कभी कभी वो फूड बेसिक का भी हो सकता है, कभी कभी बेसिक नेचर का हो सकता है, तो उसको थोड़ा एसिडिक करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर अपन को एसिडिटी से प्रॉब्लम हो जाती है। जब ज़्यादा हम लोग फूड कंज्यूम कर लेते हैं ना, जैसे कि स्पाइसी फूड या ऑयली फूड, तो अपना बॉडी भी HCl सिक्रेट करता है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी अपने एसिडिक फूड कंज्यूम किया, उसके ऊपर आपका स्टमक ने भी एसिडिक HCl रिलीज किया, तो आपको फिर क्या बोलते हैं अपन, उसके बाद फिर आपको फिर ऐसे फील होता है कि जलन वगैरह होती है ना आपको, राइट, एसिडिटी बोलते हैं ना अपन उसको। सो वगैरह फिर उसके बाद आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज सो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो थोड़ा न्यूट्रल या अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। ज़्यादा भी आप खाते रहोगे स्पाइसी, ज़्यादा भी आप ऑयली खाते रहोगे, अगर आप ज़्यादा फूड एसिडिक नेचर का खाते रहोगे तो फिर एसिडिटी हो जाएगी आपको, बिकॉज आपका स्टमक भी HCl को सिक्रेट करता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूकस इनसाइड द स्टमक। म्यूकस क्या करता है ना, एक इनर लाइनिंग होता है जो अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस, वहाँ पे भी थोड़ा ऐसे स्टिकीनेस टाइप होता है अपने स्टमक के अंदर, जो कोई लाइक अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो स्टमक के अंदर बेसिकली 3 गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होता है, पेप्सिन, HCl एंड पेप्सिन होता है, HCl होता है और आपका म्यूकस, ठीक है। ये क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, आपका जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सेकंड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको जो भी फूड है उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। म्यूकस, ये आपके स्टमक का लाइनिंग होता है जो आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देन आते हैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये सब अपना न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन का ही ये पूरा सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर ये सब आता है, न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। चलो, सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं कुछ अपने पास, इधर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भी होता है कुछ एंजाइम्स जो ये कन्वर्जन करते हैं। ये कन्वर्जन करने से अपने बॉडी को न्यूट्रिशनल कंपोनेंट मिलता है और एग्जैक्ट अपना फूड एब्जॉर्ब, अपन फूड खाते, राइट, हम फूड कंज्यूम करते, बट उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स एग्जैक्टली कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एग्जैक्ट एब्जॉर्प्शन होता है और अपने पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विली।
विली बेसिकली क्या होता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ऐसे काटे 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 जैसे होता है, जो एग्जैक्टली फूड को थोड़ा धीरे लेके जाएगा और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा. सो विली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड. सो फूड में से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को और ब्लड के अंदर भेज देगा, और ब्लड उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा. ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा. ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड अपना न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है. सो ब्लड बेसिकली पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा. ओके, चलो. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ सिक्रीशन होता है. जब अपना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो लिवर से बाइल आ जाता है. बाइल बेसिकली अपने जो भी अपने फूड मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा. उस प्रोसेस को हम लोग एमल्सिफिकेशन बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद पैंक्रियास होता है. पैंक्रियास कुछ पैंक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा, जैसे कि ट्रिप्सिन जो अपने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज जो फैट्स को लिपिड में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए. ये सब क्या मतलब, ये सब प्रोसेस है जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये होने से अपना बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ठीक है, सो अगर आपको लिवर, ठीक है, लिवर बेसिकली बाइल सॉल्ट्स और बाइल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं इसको, लाइक वी कैन डिस्कस हियर ऑल्सो. आई विल टेक अ न्यू पेज. थोड़ा लिवर के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट लिवर. ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, लिवर के बारे में. ठीक है, लिवर भी आपका एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर का पार्ट है. ठीक है, सो लिवर बेसिकली क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स और बाइल जूस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. लिवर क्या करता है बेसिकली, बाइल जूस बोल सकते हैं, एंड बाइल सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. ठीक है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, सो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस बेसिकली अपने फूड को अल्कलाइन बनाने का काम करता है. ठीक है, बाइल जूस क्या करेगा, अपने फूड को, अपने जो भी फूड कंज्यूम किया है उस फूड को क्या करेगा, फूड को अल्कलाइन करने का काम करेगा. ठीक है, हाँ, अभी आपके फूड के अंदर जब स्टमक के अंदर HCl मिक्स हुआ था ना, तो थोड़ा एसिडिक बन जाएगा. तो उसको थोड़ा बेसिक करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या सीक्रेट होगा, अल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस सीक्रेट होगा. और आपका बाइल सॉल्ट क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. सो अपना जो भी फूड रहेगा, ठीक है, सो ये क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स. सो अपने जो भी फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेकडाउन करना, मतलब देखो ना, इनिशियली अपना फूड ना अभी ऐसा है, अभी ये इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते अपन. ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, इसका ऐसे ब्रेकडाउन करना पड़ेगा इनटू स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स. ऐसे स्मॉल मतलब एक बड़ा ग्लोब्यूल को ऐसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये ब्रेकडाउन होता है अपना बाइल सॉल्ट्स की वजह से. ठीक है, ये ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, बाइल सॉल्ट्स की वजह से होता है. और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन. इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन. सो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, कहीं तो लिख के रख सकते हो, रिमेंबर दिस करके. ठीक है, सो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन. ठीक है, चलो. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हो गया. अभी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, अच्छा मैं आपको ये इमेज के साथ भी समझा दूंगा बाद में. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सब हो गया, कन्वर्जन हो गया. उसके बाद आपका जो फूड है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में आ गया. ठीक है, ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. मतलब फूड अब तक वो एक्सक्रीट नहीं हुआ. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम कंप्लीट होगा तो फिर वो फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो फूड या मतलब वो वेस्ट के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. सो वो जो भी फूड पार्टिकल्स है उसके अंदर जितना भी वाटर का कंटेंट है उसको वहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा और वहां पे बन जाएगा आपका, नाउ दिस इज द वेस्ट. ये अभी वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया तो पूरा वेस्ट है ये. नाउ दिस वेस्ट विल बी देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. ये वेस्ट को फिर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा. ठीक है, चलो. सो एक्सक्रीट कैसे करेगा, सी एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर. अगर ज्यादा पानी रहेगा तो अपना लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करेगा. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस. सो एनस के थ्रू हम लोग अपने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करेंगे. ठीक है, सो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस डायग्राम इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम.
अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसे मैंने आपको बोला, हम सबसे पहले देखो फूड अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा, बरोबर। सो माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स अपने फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ही तीन आते हैं, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड दो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों पैरोटिड ग्लैंड अपना सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड अपने टंग का नीचे का रीजन, अपने टंग है ना, अपने टंग के नीचे का रीजन को हम बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। और होता है सब मैंडिबुलर मतलब अपने जॉ के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर, इसके ऊपर ये मैंडिबल, इसके ऊपर सब मैंडिबुलर। सो यहाँ पे भी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अभी सलाइवा क्या करता है? सलाइवा के पास होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। फैरिंग्स मतलब अपने माउथ से लेके लाइक इसोफेगस का पार्ट, ठीक है, इसको हम फैरिंग्स बोलते हैं, जो फूड को आगे कैरी करने में हेल्प करेगा। स्टमक बेसिकली 3 एंजाइम्स वहाँ पे सिक्रीट होता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन जो अपने फूड को अपने फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। HCl फूड को एसिडिक बनाएगा। म्यूकस अपने स्टमक का एक लाइनिंग का लेयर होता है जो अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। स्प्लीन बेसिकली क्या होता है ना, अपने ब्लड का फिल्टर होता है, ठीक है। स्प्लीन बेसिकली एक लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है और ये अपने ब्लड का फिल्टर है। जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब अपना नेफ्रॉन भी ब्लड को फिल्टर करता है और साथ साथ अपना स्प्लीन, अपना ब्लड जो होता है ना, वो जैसे सर्कुलेट होता है ना, व्हेन द ब्लड इज सर्कुलेटिंग, तो वो इम्प्योर हो जाता है। सो इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का काम किस करेगा? स्प्लीन का। पैंक्रियाज सिक्रीट करता है एक केमिकल जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है, एक एंजाइम है बेसिकली, वो भी इंसुलिन बोलते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन सिक्रेट होता है जो अपने बॉडी के अंदर का ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अगर समझो पैंक्रियाज में से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हुआ तो अपना बॉडी के अंदर का ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, अपना ब्लड जो है ना बहुत मीठा हो जाएगा, बहुत स्वीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी स्वीट अच्छा नहीं है, ठीक है। अपना ब्लड अगर बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया तो फिर अपने सेल्स की डेथ भी हो सकती है, मतलब अपना सेल्स मरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए अपने पैंक्रियाज में से इंसुलिन ये सीक्रेट होना चाहिए। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन है। फिर उसके बाद अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद वही फूड मॉलिक्यूल्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा इन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन ने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बना दिया था, जिसको हम एमल्सिफिकेशन बोलते थे, ठीक है। एमल्सिफिकेशन होने के बाद वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक और चीज़ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा। गुड बैक्टीरिया मतलब क्या समझो, यहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ गए, यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन ना हो जाए, तो अपना बॉडी भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस करता है। सो अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है जो गुड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा टू कीप द इंटेस्टाइन्स हेल्दी, राइट। उसके बाद अपने पास होता है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम बेसिकली जहाँ से अपने स्टूल्स निकलते हैं, जहाँ से अपन अपने बॉडी का वेस्ट जो भी है उसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनस, ठीक है, एनस जहाँ से अपन अगेन अपना बॉडी का जो भी वेस्ट पार्ट एक्सक्रीट करते हैं उसको एनस बोलेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इलियम, जेजुनम एंड डिओडिनम, ठीक है। ऐसे बेसिकली 3 टाइप्स होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इलियम जो होता है ना, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जेजुनम जो होता है ना, दैट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड डिओडिनम जो होता है ना, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। सो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट जो रहेगा ना, ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम डिओडिनम बोलेंगे। जेजुनम का मतलब होता है मिडल पार्ट, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। सो मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज जेजुनम। एंड इलियम का मतलब होता है लास्ट पार्ट, एकदम एंड पार्ट, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट। यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यही कहीं पे स्टार्ट होगा, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट रहेगा ना, ठीक है, एंड पार्ट, सो एंड पार्ट को अपन बोलेंगे इलियम, ठीक है। उसके बाद वी हैव सम गॉल ब्लैडर, ठीक है, अपने पास गॉल ब्लैडर भी है। अभी गॉल ब्लैडर बेसिकली करता क्या है, अगेन अपने स्टमक के अंदर जो भी सीक्रेट होता है, HCl बोलो, पेप्सिन बोलो, ठीक है, म्यूकस बोलो, इन सबको प्रोड्यूस कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। इनको प्रोड्यूस भी करेगा और स्टोर भी करके रखेगा, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा? HCl, पेप्सिन, इसको प्रोड्यूस भी करेगा और अगर एक्सेसिव में प्रोड्यूस हो गया तो स्टोर भी करके रखेगा। उसके बाद अपन आते हैं लीवर पे, ठीक है। लीवर एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज लिवर। लिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन अगर देखे गए तो वो लिवर होता है। लिवर का ऐसे एक दो काम नहीं है, लिवर ऑलराउंडर है, बहुत सारे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है पता है क्या? अपने ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगा, अपने बॉडी के अंदर के ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है ना उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। और अभी यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होता है ना तो कुछ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, जैसे कि आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जब बहुत एक्सेसिव में बन जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, जब बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना तो उसको वो अपने पास स्टोर करके रखेगा। लीवर क्या करेगा? जो भी चीज़ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको अपने पास स्टोर करके रखेगा। और जब बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, when the body requires that nutritional component, and that time the liver is going to give that nutritional component to that body, ठीक है। सो अभी तो मैंने सिर्फ दो या तीन चीज़ें बोला है, बट और भी लीवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, ठीक है। बट ऑल्सो रिमेंबर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। सो विटामिन मिनरल्स का स्टोर करने में हेल्प करेगा, अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म मतलब अपने बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने का काम भी अपने लीवर का होता है, ठीक है। ईसोफेगस जो अपने फूड को माउथ से लेकर डायरेक्ट स्टमक तक पहुंचाएगा। टंग ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया ही है, फूड को रोल करने में हेल्प करेगा। उसके ऊपर के टेस्ट बर्ड्स एग्जैक्टली हमें टेस्ट को सेंस करके बताने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड माउथ के थ्रू ही अपना फूड जाएगा। सो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो तो ये पूरा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका डायग्राम ड्रॉ करने का और हर एक चीज़ को जो मैं एक्सप्लेन करते गया इसके बारे में आपको लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। सब लोग अपने अपने नोट्स के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके हर एक पॉइंट, इसके ऊपर हर एक पॉइंट, ये क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करते वक्त हर एक चीज़ बताया। सो जो भी मैंने बताया उसको आप लिख लेना, ठीक है। जो भी मैंने बताया उसको आप क्या कर देना, लिख लेना, ठीक है। सो yes, so we have completed with the nutritional part. सो अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रिशन पार्ट में हमने एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। लाइक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हर एक पॉइंट के ऊपर अपने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो हमने मिस किया है, ठीक है। सो आई होप सो सबने नोट्स बनाया रहेगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बस अब बैठ के सुन के गए रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाया रहेगा तो अलग लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो दिस वीडियो वॉज ईजी टू यू, ठीक है। अब भी न्यूट्रिशन का वीडियो हो गया। सून आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियोज ऑन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो बाय।